Gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Creator of the whole universe, पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, Thou art the King of kings and Lord of lords. आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। Lord, Thou art our Savior. प्रभु, आप हमारे उद्धार करते, You gave Thy life for us. आपने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। When we are heading towards, Lord, destruction, You came and sought us and saved us. प्रभु, हम तो विनाश के लिए बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन आप आए, हमें ढूंढा और हमें छुटकारा दिया। Thank Thee for the great salvation You have given to us. धन्यवाद देते हैं बड़े छुटकारे के लिए जो आपने हमें दिया। Not only that, Lord, You are going to take us. और प्रभु, आप ना केवल ये बल्कि आप हमें अपने साथ लेकर भी जाएंगे। We are going to be with Thee forever and ever. हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ होंगे। Lively hope, blessed hope You have granted in our lives. प्रभु, आपने हमें हमारे जीवन में जीवित आशा दी है। Thank Thee, Lord, You have given this opportunity to come for these special meetings. प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपने हमें ये अवसर दिया कि हम इस विशेष सभाओं में आ सकें। Thank Thee for Thy people, You had pity on them. And Lord, You have given this burden to Thy servant and arranged these meetings for Thy people to be prepared for the heavenly kingdom. और धन्यवाद देते हैं आपने हम लोगों पर दया दिखाई और हमारे भाई को बोझ दिया इन सभाओं के लिए, ताकि हम आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें। Thank Thee, Thy servant brother Isaac, Abraham and sister, they have brought them from Chennai. हमारे भाई अब्राहिम के लिए, उनकी पत्नी के लिए धन्यवाद देते हैं, आप उनको चेन्नई से लेकर आए। Thank and praise Thee the way You are using him here. और धन्यवाद देते हैं जिस रीति से आप उन्हें यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हैं। Since yesterday You have been with us and showing Thy faithfulness in our life. प्रभु, आप दिखा रहे हैं किस तरह से आप हमारे मध्य में और अपनी विश्वास योग्यता साबित कर रहे हैं। Oh Lord, these meetings may continue, Lord, gloriously. और प्रभु, ये सभाएं वही बड़े महिमित रूप से जारी रहें। Lord, we pray that Thou may control this weather as well as electricity. और प्रभु, आपसे प्रार्थना इस मौसम को भी और इस शहर को भी और बिजली को भी आपके नियंत्रण में रखें। Keep Thy angels around us. और हमारे चारों तरफ आपके स्वर्गदूतों को रखें। No untoward incident may happen. और कोई भी ऐसी अलग सी घटना ना घटे। Be with us. हमारे साथ हों। Anoint Thy servant afresh. हमारे भाई को नई रीति से अभिषेक करें। Use him in the midst of us. और उन्हें हमारे बीच में इस्तेमाल करें। Even in family prayer also, Lord, remember. और पारिवारिक प्रार्थना में भी हमें याद रखें। Once again we thank Thee for dear brother Mehtab. और एक बार फिर हमारे भाई मेहताब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, in Thy providence, You have united our dear sister and Mehtab, wife and husband, and blessed him, and You have really protected 49 years as a married life. और प्रभु, आपने हमारे भाई को और हमारी बहन का विवाह किया और पिछले 49 सालों तक आपने जोड़ के रखा। This is only by Thy grace. ये सब आपके अनुग्रह के कारण ही You है। have blessed him with the children and grandchildren. आपने उन्हें बच्चों से और नाती पोतों से आशीष दी। Thank Thee, You have kept him in the ministry also. और धन्यवाद देते हैं आपने उन्हें सेवकाई में भी रखा। Lord, bless him. आप उनको आशीष Bless दे his प्रभु। family. उसके परिवार को आशीष दे। We are grateful to Thee because You have preserved for all these 49 years of married life. और प्रभु, हम आपके बड़े आभारी हैं, इन पिछले सारे 49 सालों तक विवाहित जीवन में आप उनके साथ बने रहे। This time remember Joshi's father Prasad. Lord, touch him and heal him. और हमारे भाई प्रसाद को याद करते हैं, उन्हें छुएं और चंगा करें। Those who are sick and suffering, Lord, touch them and heal them. जो अभी बीमार हैं प्रभु, आप उनको छुएं और चंगा करें। You be in our midst according to Thy word, Matthew's Gospel 18:20. मत्ती 18:20 के मुताबिक, आपके वचन के मुताबिक आप हमारे मध्य में रहें। Lord, without Thee we can do nothing. प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। Lord, open heavens may be granted to us. और प्रभु, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए। Lord, we pray for brother Martin. He is not well. Touch him and heal him. हमारा भाई मार्टिन सही नहीं है प्रभु, आप उनको भी छुए और चंगा करें। So that he may be useful in the ministry. और ताकि वो सेवकाई में बड़ा लाभदायक हो। Remember his family also. उनके परिवार को भी याद करते हैं। We commit ourselves, binding all the power of darkness with the faith. We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और अंधकार की सारी ताकतों को और विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Let us sing a song from Songs of Zion 201.
Song number 201. सियोन के गीत पुस्तक से 201 नंबर गीत गाएंगे। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। पीढ़ी पीढ़ी बतलाऊंगा, अमर है तेरी दया, अमर है तेरी दया। पीढ़ी पीढ़ी बतलाऊंगा, अमर है तेरी दया, अमर है तेरी दया। कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर वाचा स्थिर किया, पाप क्षमा है किया। कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर वाचा स्थिर किया, पाप क्षमा है किया। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। हर परीक्षा में तू ही मुझको भरपूर दे देता, भरपूर दे देता। हर परीक्षा में तू ही मुझको भरपूर दे देता, भरपूर दे देता। करुणा करके मुझको छुड़ाता, विश्वास उतराता, विश्वास उतराता। करुणा करके मुझको छुड़ाता, विश्वास उतराता, विश्वास उतराता। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। हर दिन नाई होती रहती है तेरी वात्सल्यता, तेरी वात्सल्यता। हर दिन नाई होती रहती है तेरी वात्सल्यता, तेरी वात्सल्यता। सच्चाई तेरी अति महान है, तू ना बदलता, तू ना बदलता। सच्चाई तेरी अति महान है, तू ना बदलता, तू ना बदलता। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा।
तेरे आने तक तू मुझको निर्दोष रखेगा, निर्दोष रखेगा। तेरे आने तक तू मुझको निर्दोष रखेगा, निर्दोष रखेगा। विश्वास योग्य प्रभु तू मेरी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। विश्वास योग्य प्रभु तू मेरी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। अच्छी कुश्ती मैं लड़ूंगा, विजय पाऊंगा, विजय पाऊंगा। अच्छी कुश्ती मैं लड़ूंगा, विजय पाऊंगा, विजय पाऊंगा। महिमा मुकुट तुझसे लूंगा, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा। महिमा मुकुट तुझसे लूंगा, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। गीत नंबर 707। हल्लेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा। हल्लेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा होती रहेगी। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा होती रहेगी। प्रभु जी स्तुति तेरी करूंगा, हल्लेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा, हल्लेलुया गाऊंगा, तेरी करूंगा। वायदा किया है तूने, पूरा करता भी तू है। वायदा किया है तूने, पूरा करता भी तू है। सच्चा परमेश्वर तू है, मुझे संभालने वाला तू है। सच्चा परमेश्वर तू है, मुझे संभालने वाला तू है। प्रभु जी स्तुति तेरी करूंगा, हल्लेलुया गाऊंगा,
अपने विरोधियों को गिरा देता है प्रभु, अपने विरोधियों को गिरा देता है प्रभु। महाप्रतापी तू है, मेरा उद्धार का सिंह भी तू है। महाप्रतापी तू है, मेरा उद्धार का सिंह भी तू है। प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊँगा, स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊँगा, स्तुति तेरी करूँगा। जितनों ने तुझको देखा उन्होंने ज्योति पाई, जितनों ने तुझको देखा उन्होंने ज्योति पाई। यही है अनुभव मेरा, मेरे जीवन की ज्योति तू है। यही है अनुभव मेरा, मेरे जीवन की ज्योति तू है। प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊँगा, स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊँगा, स्तुति तेरी करूँगा। कर भाई सब दूर है किया, अब तक तूने साथ दिया। कर भाई सब दूर है किया, अब तक तूने साथ दिया। एबेनेजर बनकर प्रभु मेरी रक्षा तू ही ने किया। एबेनेजर बनकर प्रभु मेरी रक्षा तू ही ने किया। प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊँगा, स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊँगा, स्तुति तेरी करूँगा। जीवन में जो भी होवे सहलूँगा आनंद के साथ, जीवन में जो भी होवे सहलूँगा आनंद के साथ। जीऊँगा तेरे लिए, मेरे जीवन का दाता तू है। जीऊँगा तेरे लिए, मेरे जीवन का दाता तू है। प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊँगा, स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊँगा, स्तुति तेरी करूँगा। दुनिया के इस सफर में जो कुछ भी मार्ग में आए, दुनिया के इस सफर में जो कुछ भी मार्ग में आए, तुझको ही महिमा मिले। मेरी विनती है तुझसे यही, तुझको ही महिमा मिले। मेरी विनती है तुझसे यही। प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, गाऊँगा, स्तुति
हर समय प्रभु यीशु के स्तुति सदा होती रहेगी। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा होती रहेगी। प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूँगा। गीत नंबर 704। तेरा बलिदान क्या है, तेरी गवाही क्या है, तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके जो तुम सोने लगे, मसीह यीशु को ग्रहण करके जो तुम सोने लगे। जागो उठो, जागो उठो, आओ विश्वासी, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। प्रेरितों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, प्रेरितों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, सब कुछ सहते हुए, सब कुछ सहते हुए आत्मा बचाते रहे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। पत्थरवा किए गए, आरे से चीरे गए, पत्थरवा किए गए, आरे से चीरे गए। प्रचार वो करते रहे, प्रचार वो करते रहे, दर्शन बने भी रहे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान,
कुर्बानी देते हुए सेवा वे करते रहे। वचन तो फैलता गया, वचन तो फैलता गया, मंडली बनती गई। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। पक्के के तो बहुत है, काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। पक्के के तो बहुत है, काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। मजदूर तो पंजाबी, मजदूर तो पंजाबी, अब थोड़ा ही है। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके जो तुम सोने लगे, मसीह यीशु को ग्रहण करके जो तुम सोने लगे। जागो उठो, जागो उठो, आओ विश्वासी। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। Shall we pray? Most gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, Lord, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we come to Thy presence. हमारे प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती और मीठे नाम में आपके चरणों में आते हैं। Thank the Lord, you have helped us to sing songs in Thy presence. प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने आपकी उपस्थिति में हमें गीत गाने में सहायता करी। Lord, you have given gifts and talents to the house of God. प्रभु आपने परमेश्वर के घर में हमें वरदान दिए हैं। Lord, in Thy providence, our Smiley and Vijay Kumar, you have brought them together, wife and husband, and blessed them very beautiful. And Lord, very wise their children, daughters. और प्रभु आपने अपने प्रयोजन में हमारे भाई को, उनकी पत्नी को आपके घर में लेकर आए हैं और उनको बड़े प्यारे बच्चे दिए हैं। We pray for Hannah. हम हैना के लिए प्रार्थना करते हैं। Best talent you have given her playing violin. और धन्यवाद देते हैं आपने उनको आशीष दी है वायलिन प्ले करने के लिए। Bless her. हाँ, बहन को बड़ी आशीष Your दे। wisdom, understanding and knowledge. और प्रभु आप ही उनको बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य दे। These skills may be exploited for the expansion of Thy kingdom. और उनका ये वरदान आपके राज्य की बढ़ोतरी में खर्च हो। She may become great blessing to the family as well as the house of God. वो अपने घर के लिए और परमेश्वर के घर के लिए बड़ी आशीष का कारण हो। Be with her. उनके साथ हो, Be with every younger daughter also. बड़ी बेटी के साथ हो। Lord, we commit Chaitanya's relative. और चैतन्यास के रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। We pray with much burden for her. उनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। She went through under kidney stones operation. और जब वो किडनी स्टोन के ऑपरेशन में से होके गई हैं, Now she is suffering with breathlessness. और अब वो परेशान है। She is in ICU. Touch her and heal her. वो आईसीयू में है और उन्हें छूकर चंगा करें। We thank Thee for all our dear ones, those who are playing the organs in Thy house. और प्रभु धन्यवाद देते हैं उन सबों के लिए जो अपने वरदानों को आपके घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाद्य यंत्र बजाते We हैं। thank and praise Thee for Thy loving kindness towards the house of fellowship.
धन्यवाद देते हैं संगति के घर के लिए आपकी जो बड़ी दया और प्यार है। O Lord, you anoint thy servant afresh and use him in the midst of us. और प्रभु हमारे भाई को एक नई रीति से अभिषेक करे और आपकी सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करे। Those who are sick and suffering, touch them and heal them. जो बीमार हैं और रोगी हैं उनको छूकर चंगा करें। We commit ourselves, we ask this prayer in the most holy and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना हम हमारे पवित्र प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Shall we turn once again to our theme verse in Isaiah chapter 2 and verse 3? एक बार फिर हम अपनी थीम वर्स यशाया दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत को देखेंगे। Isaiah chapter 2 and verse 3. यशाया दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। Shall we read this verse all together, please? हम सब मिलकर इसको एक साथ पढ़ेंगे। Isaiah chapter 2 and verse 3. यशाया 2:3 Loudly, जोर से clearly and prayerfully. और स्पष्ट तरीके से और पवित्र प्रार्थना के साथ। And बहुत से many देशों के people लोग आएंगे और shall आपस में go and कहेंगे, say, आओ come ye and let हम us go यहोवा के up to the पर्वत पर mountain चढ़कर of the याकूब Lord, के परमेश्वर to के the भवन house में of God जाएं। of Jacob, तब and वह he will हमको teach us अपने his मार्ग ways, सिखाएगा और हम and उसके we will पथों walk पर in his चलेंगे। paths, for out of Zion shall क्योंकि go यहोवा forth की व्यवस्था the law सिय्योन से and the और word of उसका the वचन Lord यरूशलेम से from निकलेगा। Jerusalem. We'll turn to Genesis chapter 28. हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 28 अध्याय। Genesis chapter 28. उत्पत्ति उसका 28 अध्याय। Shall we read all together verse 16 उसकी- and verse 17? उसकी 16 और 17 आयत सब मिलकर पढ़ेंगे। We'll read all together, please. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Verse 16 and 17. 16 और 17 आयत। And Jacob तब याकूब awaked जाग out of his उठा sleep, and he और said, कहने लगा, surely the Lord is in this निश्चय place, स्थान में यहोवा and है। I knew it और not. मैं इस बात को And he नहीं was जानता afraid and था। said, how dreadful is और this भय खाकर place? उसने कहा, This is यह none स्थान other क्या ही but the भयानक house है। of God, यह तो and this is परमेश्वर the के gate भवन of को छोड़ heaven. और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। We'll read verse 19 also. हम 19वीं आयत भी पढ़ेंगे। And he called the name of उस that स्थान का place नाम Bethel, बेतेल रखा। but the name of that city was पर called उस नगर का नाम Luz पहले लूज at the था। first. May the living Lord bless the reading of these verses, and may he speak to every one of us. जीवता परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे और हम में से हर एक से बात करे। This theme verse has been given prayerfully with burden by God's servant here. ये थीम वर्स बड़े प्रार्थना के साथ और बड़े बोझ के साथ परमेश्वर के दास ने दी है। God has been speaking to us in various ways. परमेश्वर अलग अलग रीति से हमसे बात कर रहा है। We all have to go up. Let us all go up हम to a सब higher level in our spiritual life. हमें अपने आत्मिक जीवन में हम सबको ऊपर की तरफ जाना है। This is in preparation for the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज की तैयारी में है। And also we saw the glimpse, we had a glimpse about the mountains of the Lord. और हमने पर्वतों के परमेश्वर के पर्वतों के बारे में भी देखा। And also we saw about a view of what is going to happen really, how this prophecy is going to be fulfilled in the last days. और हमने देखा इन अंत के दिनों में ये कैसे ये भविष्यवाणी पूरी होगी। We are all going to be the part of this kingdom. और हम सब इस राज्य के हिस्सा होंगे। And also we have been seeing this morning about the house of God. और आज सुबह हमने देखा परमेश्वर के घर के बारे में। How we have to behave in the house of God. हम परमेश्वर के घर में कैसे बर्ताव करें। God is concerned about two buildings which he is building. परमेश्वर दो घरों की चिंता करता है। He is concerned about the building of his own house, the house of God. वो अपने घर परमेश्वर के घर के बनाने के बारे में चिंता करता And है। he is also concerned about our own homes, the families which the Lord is building. और वो हमारे परिवारों के बनाने के विषय में चिंता करता है जिसे परमेश्वर बना रहा है। We should allow the Lord to build our homes. हम परमेश्वर को होने दे कि परमेश्वर हमारे घरों को बनाए। And God should be first and he should be honored in our home. और हमारे घरों में परमेश्वर को पहला स्थान मिले और उसे आदर मिले। And our homes, our houses should be God's house. और हमारा घर परमेश्वर का घर हो। Remember that and never forget. और इस बात को याद रखें और कभी ना भूलें। We give many spiritual, beautiful biblical names to our homes if we own our house. यदि हमारा कोई अपना घर होता है तो हम उस घर को बहुत सारे बाइबल के नाम देते हैं। But our family should be built on the
principles. लेकिन हमारा परिवार बाइबल के सिद्धांतों के ऊपर बना हो। Your house and my house should be God's house. आपका घर और मेरा घर परमेश्वर का घर हो। God wants to dwell in our homes. परमेश्वर हमारे घरों में वास करना चाहता He है should be honored. और उसको हमारे घर में आदर मिले। We should follow his ways. हम उसके मार्गों पर चलें And his word should be honored in our homes. और उसके वचन को हमारे परिवारों में आदर मिले। That is the Lord's burden. ये प्रभु का बोझ है। God wants families who will serve him. परमेश्वर को परिवार चाहिए जो उसकी सेवा करते हों। So continuing the house of God, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना जारी रखते here हुए it says the house of God of Jacob. हम देखते हैं याकूब के परमेश्वर का घर। Why Jacob's name is mentioned? यहाँ पे याकूब का नाम क्यों आता है? There is a significance that Isaiah the prophet saw this and he heard about this and he is mentioning to us it's the house of God of Jacob. और यहाँ पे एक विशेष महत्व है कि यशाया ने इस बात को देखा और इसलिए वो याकूब का नाम उसने जोड़ दिया और करा है याकूब के परमेश्वर का घर। When you read Genesis chapter 28, जब आप उत्पत्ति 28 अध्याय पढ़ते हो from verse 10 to 22, 10 आयत से लेके 22वीं आयत तक, you will understand the incident which is narrated in this portion. और आप इस घटना में जो इस हिस्से में जो जिस घटना का जिक्र है आप उसको समझ जाओगे। We know about Jacob. हम याकूब के बारे में जानते He हैं। is a supplanter वो अड़ंगा मारने वाला था and he was deceptive in his character. और अपने और स्वभाव ही से धोखेबाज था। But God worked in his life. लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम God किया had a purpose in his life. और परमेश्वर की योजना थी उसके He is लिए। the God of Abraham, Isaac and Jacob. और वो अब्राहिम का और इसाक का और याकूब का परमेश्वर था। Many things happened in his family and his own life. और बहुत सारी बातें उसके परिवार के जीवन में और उसके खुद के जीवन में हुई। Some things which should not have happened in their family, all those things happened. और बहुत सारी बातें जो उसके परिवार में नहीं होनी चाहिए थी वो सारी बातें हो गई। It was a very, very sorrowful situation in the family of Isaac. इसाक के परिवार में बड़ी दयनीय हालत है। What all happened? क्या हुआ? He was very obedient to his mother, वो अपनी माँ के प्रति बहुत आज्ञाकारी था, but he deceived his father लेकिन उसने अपने पिता को धोखा दिया and he cheated his father. और उसने अपने परिवार के साथ पिता के साथ धोखा किया। And there was a situation in which Esau wanted to kill his brother Jacob. और एक ऐसी परिस्थिति आई कि जब वो अपने भाई याकूब को मारना चाहता था। Jacob somehow bought his birthright from Esau. याकूब ने कैसे न कैसे करके एसाव से उसका जन्म पहलौठे का अधिकार चुरा लिया। As I said, he cheated his father. जैसा कि उसने अपने पिता को धोखा दिया। When he was cheating, he used God's name. और जब वो धोखा दे रहा था तो उसने परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल किया। God made me to get this faster. परमेश्वर ने ये काम जल्दी करवाया मुझसे। So, and also we read in verse 34 and 38 in the previous chapters that Esau was weeping about what has happened. और पिछले अध्याय की 34 और 35वीं आयत में हम देखते हैं जो कुछ हुआ उस बात के ऊपर एसाव रो रहा था। And there was hatred in the family. और परिवार में नफरत थी। There was a division in the family. परिवार बटा हुआ था। All hopes are dashed now in the family of Isaac. और इसाक के परिवार में सारी आशाएं खत्म हो गई। Now Jacob has to save himself. अब याकूब को अपने आप को बचाना था। He is running to save his life. और वो अपने जीवन को बचा रहा है। So he was advised to go away from the home to his uncle's house. तो वो अपने पिता के घर को छोड़कर अपने मामा के घर को भागा। So Isaac blessed him. Isaac, his father, blessed him. इसाक ने उसके पिता ने उसको आशीष And in दी। verse 5 it says Isaac sent away Jacob. और 5वीं आयत में लिखा है इसाक ने याकूब को विदा किया। It was a very, very sad situation for Jacob. याकूब के लिए बड़ी उदास हालत है। First time he is leaving his family and taking a journey all alone in his life. पहली बार वो अपने परिवार को छोड़ रहा है और अकेला एक लंबी यात्रा कर रहा With है। all the bitter experiences which is in his mind very fresh, he is making this journey अपने towards सारे Padanaram. कड़वे अनुभवों के साथ जो उसके दिमाग में एकदम ताजा है, इन सब कड़वे अनुभवों के साथ वो यात्रा कर रहा He would है। have been having a lot of fear in his heart. और उसके मन में बहुत डर होगा। The guilt of whatever he did would have been haunting him. और उसके मन में जो उसने किया वो उसको कचोटता होगा। He was not at all sure about his future, what is going to happen in his life. और उसके जीवन में आगे क्या कुछ होगा उसको निश्चित नहीं था। Now he doesn't know whether he'll return back to his house, और उसे मालूम नहीं था कि वो वापस अपने घर लौट कर आएगा कि नहीं। whether he'll be able to see his father and mother again.
कि वो अपने माँ बाप को दोबारा फिर देख पाएगा या नहीं। With all those thoughts, इन सब which are विचारों very, के very साथ natural, he जो was ब- making this journey. जो बड़ी स्वाभाविक है, जब वो यात्रा कर रहा था, After a lonely, long walk during the day, पूरे दिन अकेले चलने के बाद sun is setting, सूरज डूब रहा है and he wants to take rest, he wants to sleep, और वो अब सोना चाहता है and he is looking for a pillow. और वो एक तकिए की तलाश में है। How can he look for a pillow in that place? और उस जंगल के स्थान में वो तकिया कैसे ढूंढ सकता है? His mother sent him away, father sent him away, but they did not pack a good bed for him or a pillow for him. उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसको भेज दिया, लेकिन उसके साथ तकिया बिस्तर नहीं भेजा। He would have been sleeping very comfortably in his home. अपने घर में बड़े आराम से सोता होगा। Now all alone, अब he is अके- going to sleep अब on the अके- floor, on the ground. अब अकेला वो धरती पर, जमीन पर सोएगा। Stone became the pillar for him, अब उसके लिए पत्थर उसका तकिया बन गया and he is lying down. और अब वो लेट गया। He would have been very tired, अब बहुत थका हुआ होगा so he is going to sleep now. और अब वो सोएगा। In his sleep, he had a dream. और जब वो सोया तो एक स्वप्न देखा उसने। Normally, what should have been the dream? आमतौर से सपना क्या होता है? A dream should have come as if Esau is coming with a knife to kill him. और सपना ऐसा होना चाहिए था कि सपने में एसाव चाकू लेकर उसके पास उसको मारने के लिए आ रहा There is है again a big fight between Esau and Jacob. और फिर याकूब और एसाव के बीच में एक बड़ी लड़ाई होती That should है have come as a dream. और ये बातें उसके सपने में आनी चाहिए I will थी। tell you why. क्यों? If children are writing their exam, यदि बच्चे अपनी परीक्षा देते हैं they are having fear. और उनको डर लगता You know है what will come in the dream? तो उनके सपनों में क्या आता है? As if they did not take the hall ticket for the examination. That dream will वो come. अपना प्रवेश पत्र अपने साथ नहीं ले गए, भूल गए As if they missed the bus to go to the exam hall. और परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए बस उनकी छूट गई। Sometimes they'll think as if they failed the exam also. और कई बार ऐसा सपना आता है वो परीक्षा में If they फेल हो have गए fear about the exam, the dream will be about exam only. और वो एग्जाम से, परीक्षाओं से बहुत डरते हैं और उनकी सपने भी परीक्षाओं को लेकर आते हैं। Sometime when you are traveling somewhere, कई बार जब आप कहीं पर यात्रा कर you रहे are होते always हैं thinking during the daytime about that travel. और आप हमेशा दिन भर उस यात्रा के बारे में You सोचते know हैं what will be the dream? और सपना क्या आएगा रात As को? if you are entering the railway station and the train is just passing कि by. आप रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं और ट्रेन छूट गई। This is quite natural, no? ये बड़ा स्वाभाविक है। Whatever happens during that day in your life, whatever it is, it normally comes as a dream. और जो कुछ भी दिन भर आपके जीवन में हुआ उस दिन वो सपने में आता है। But when Jacob was sleeping on the ground, लेकिन जब याकूब जमीन पर सो रहा था, on the stone which is very uncomfortable, उस पत्थर पर जो आरामदायक बिल्कुल नहीं था and it is very dark, और बड़ा अंधेरा था, he is alone, वो अकेला था ground is very rough, और जमीन बड़ा कठोर थी, he is in loneliness, वो अकेला था and he is tired and weary, और बड़ा थका हुआ था and he would have been just thinking about what all happened in his life. और वो सोच रहा होगा जो कुछ उसके जीवन As I में said, हुआ। things which should not have happened in his life. जैसा मैंने कहा, जो बातें उसके जीवन में नहीं होनी चाहिए थी वही बातें हो गई। But at that time, लेकिन उस समय he had a dream. उसको सपना आया We can say it is like a heavenly vision which was given to him. और हम कह सकते हैं ये स्वर्ग से दिया गया दर्शन था उसको। He had a new experience, उसको एक नया अनुभव मिला, wonderful experience, heavenly experience. बड़ा अद्भुत अनुभव, स्वर्गीय अनुभव। Remember, याद रखिए, it may be you who is Jacob. और ये शायद आप हैं जो याकूब हैं। Many things what should not have happened might have happened in your life. बहुत सारी बातें जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए वो आपके जीवन में हो गई। You may be wondering why at all this happened in my life? आप सोच रहे होंगे ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, Why all this happened in my family? ये मेरे परिवार में क्यों हुआ। You are full of fear. आप बड़े डर से भरे हुए हैं Past guilt is haunting you. और पिछले काम आपको कचोट रहे हैं। You are thinking about the future. आप भविष्य के बारे में सोच रहे There हैं is no hope at all. और कोई आशा नजर नहीं आ रही You are looking at the present. और आप वर्तमान में देख रहे You हैं, are alone. आप अकेले And हैं everything is dark and gloomy. और सब चीजें अंधेरी और दुखदाई हैं। Life has become very rough for you. जीवन आपके लिए बड़ा कठोर बन गया। But remember, लेकिन याद रखिए, that is the time you have heavenly experience. ये ऐसे ही समय में आपको स्वर्गीय दर्शन मिलते हैं That is the time you come closer to God. और ऐसे ही समय में आप परमेश्वर के करीब आते हैं। That is the time you will be experiencing God in a new way. ऐसे ही समय में आप परमेश्वर को एक नई रीति से देखोगे। God uses these situations to reveal himself more to you
and make himself very close to you. परमेश्वर इन परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है कि वो अपने आप को बहुतायत से आपके ऊपर प्रकट कर सके और आपके और करीब आ सके। When Apostle Paul was in the Roman prison, जब पौलुस प्रेरित रोम की जेल में था, he had the glimpse of the crown of glory. उसको महिमा के मुकुट का दर्शन देखा उसने। When John in his old age, when he was in the Isle of Patmos, जब यूहन्ना अपने बुढ़ापे में पतमोस टापू पर था, he had a revelation of the Lord Jesus Christ. उसने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन He देखा। did not get that revelation when he was in the bosom of Jesus Christ physically. और जब वो शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के गोद में था, तब उसने वो दर्शन नहीं देखा। In many believers' life, great men of God in their lives, the difficult moments brought out the best experience, spiritual experience. परमेश्वर के बहुत सारे जनों में जो जब उनके मुश्किल घड़ियों में होते हैं, उन मुश्किल घड़ियों में उनको परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे दर्शन मिलते You will हैं। have a mountain experience. आपको ऐसे समय में पर्वत शिखर के अनुभव You will have a मिलेंगे, heavenly experience. आपको स्वर्गीय अनुभव मिलेगा। God wants you to come into that heavenly experience and be close to Him. और परमेश्वर चाहता है कि आप उस स्वर्गीय दर्शन में आए और उसके और करीब आ जाएं। So he had the vision तो उसको or a dream, we can say. और उसने एक दर्शन देखा। What did he see? और उसने क्या देखा? In chapter 28, और 28 अध्याय में we read what was his dream. और हम देखते हैं उसका दर्शन क्या था। So it is very clearly mentioned what was the dream. और बड़ा साफ लिखा है उसका, उसने क्या देखा। A ladder was set up on the earth पृथ्वी के ऊपर एक सीढ़ी रखी गई and it reached up to heaven. और उसका दूसरा सिरा स्वर्ग में था। And the angels of God were ascending and descending in that ladder. और परमेश्वर के दूत उसके ऊपर उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। And the Lord God stood above that ladder. और परमेश्वर यहोवा ऊपर सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ था। And he spoke to Jacob. और उसने याकूब को बोला, He said, I am the Lord God of Abraham thy father and God of Isaac. और मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ और इसहाक का परमेश्वर हूँ। The land which you are lying, I will give unto you. जिस भूमि पर तू लेटा हुआ है, ये भूमि मैं तुझे दे दूंगा। The hard ground where you are lying. वो कठोर जमीन जिस पे तू लेटा हुआ है, The hard land which is giving pain to you now. ये कठोर जमीन जो तुझे अभी दुख दे रही है, I will give it to you and thy seed. मैं ये भूमि तुझे और तेरे वंश को And दे he दूंगा। promised his blessing. और उसने अपनी आशीष की प्रतिज्ञा To करी, you all the families of the earth will be blessed. और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष And he पाएंगे। said, he gave him a promise, I am with thee and will keep thee in all the places wherever you go. और उसने याकूब के साथ एक प्रतिज्ञा बांधी कि मैं तेरे साथ हूँगा और जहाँ जहाँ तू रहेगा मैं तेरे साथ He was रहूँगा। worried. Nobody is there with him. और वो चिंता कर रहा था, कोई उसके साथ नहीं है, Father and mother is not there. माँ बाप नहीं है, He's all alone. बिल्कुल अकेला है। But the Lord said, I am with you. लेकिन प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ हूँ। And he was worried. Who will take care of me? और वो उसे चिंता थी, मेरी देखभाल कौन करेगा। The Lord said, I will keep thee in all places wherever you go. प्रभु ने बोला जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरी देखभाल He करूंगा। was worried whether he will come back to that place, his place. और उसे बड़ी चिंता थी वो वापस लौट के भी आएगा या He नहीं। said, I will bring you again into this land. और प्रभु ने उसको बोला मैं तुझे वापस इस जमीन पर, इस भूमि पर लेकर आऊंगा। Again gave him an assurance in his life. और उसको उसके जीवन में उसको आश्वस्त किया, I will not leave you till I have done what I have spoken thee of. मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने तुझसे जो बोला है वो पूरा ना कर What a दूं। wonderful words of assurance and confidence for Jacob. याकूब के लिए शब्द कैसे हिम्मत देने वाले और आश्वासन से भरे हुए शब्द थे। This is the time of blessing for him. उसके लिए ये समय आशीष से भरा हुआ था। And God gave him the assurance which was required at that moment. और परमेश्वर ने उसे वो आश्वासन दिया जिसको इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। If you are having the experience of Jacob today, यदि आप याकूब के अनुभव में से होके निकल रहे you are हैं, full of fear now, आप डर से भरे हुए हैं, loneliness, आप बिल्कुल अकेले हैं, many questions, why? आपके मन में बहुत सवाल है, ऐसा क्यों? The Lord is saying, प्रभु कह रहा है I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं You त्यागूंगा। are precious to me. तू मेरे लिए बड़ा कीमती I है, have purchased you with my precious blood. मैंने अपने बेशकीमती लहू से तुझे खरीदा है। When the Lord says, I will never leave you nor forsake you, जब प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, don't just take it that he never leaves us nor forsakes us. बिल्कुल ऐसा ना ले कि वो मुझे हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Do you know what he says? आपको मालूम है वो क्या कहता Do है? you know what he means by that? आपको मालूम है इन बातों से, इन You शब्दों are से इसका क्या so मतलब? precious to me, I can't leave you. I won't leave you. और आप
तुम मेरे लिए इतने कीमती हो कि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। You are so precious to me. तुम मेरे लिए इतने कीमती हो, How can I leave you? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता How हूँ, can I forsake you? मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ। Many times in the difficult situations, कई बार मुश्किल हालातों में we feel that God is not with us. हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं Nobody है, is with me. कोई मेरे साथ नहीं है। But he says, I will never leave you. लेकिन वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, I am with you. मैं तेरे साथ He's a हूँ। God of promises. वो प्रतिज्ञाओं का He परमेश्वर is है, faithful in whatever promise he gives. और वो जो प्रतिज्ञाएं करता है उसमें वो विश्वास योग्य है। So this place was a place of blessing. तो ये भूमि आशीष की भूमि थी, Blessings were flowing down from heaven. और स्वर्ग से आशीष नीचे आ रही थी। In the midst of all the suffering of Jacob, there was a blessing coming down from heaven. याकूब के सारे परेशानी और दुखों के बीच में स्वर्ग से आशीष नीचे आ रही थी। Now the ladder reminds about a journey which he is supposed to take. अब ये सीढ़ी एक यात्रा के बारे में दिखाती है जिसे हमें करनी है। Where is this ladder? ये सीढ़ी कहाँ है? It is connecting the earth and God. ये सीढ़ी पृथ्वी को और परमेश्वर को जोड़ रही है। The Lord Jesus Christ, through the Lord Jesus Christ, we can reach God. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। Through His name, we get connected with God. उसके नाम के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। Because of His sacrifice, we are connected with God. उसके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। Because of His love, we are connected with God. उसके प्रेम की खातिर हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। Anyone can reach God. कोई भी परमेश्वर तक जा It is सकता है। easy for you to reach God through the Lord Jesus Christ, who is the mediator between God and man. प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच बिछुआई है, उसके द्वारा बड़ा आसान है आपके लिए परमेश्वर तक जाना। When you are connected with God, जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, all fear is gone. सारा डर जाता रहता All है, apprehension is gone. और सारे बुरे बुरे ख्याल खत्म हो जाते हैं। All worries about the future is gone. भविष्य की सारी चिंताएं जाती रहती हैं। Have faith in this God of Jacob. याकूब के इस परमेश्वर पर भरोसा रखें, And it is a journey to heaven. और ये स्वर्ग की ओर यात्रा है। The ladder reminds us about this journey to heaven. ये सीढ़ी हमें स्वर्ग की ओर जाने वाली यात्रा की याद दिलाती है। How do we climb the ladder? हम सीढ़ी पर कैसे चढ़ते I हैं? don't know how many of you have the experience of climbing on a ladder. मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों को सीढ़ी पर चढ़ने का अनुभव है। The ladder, we hold the ladder हम सीढ़ी को पकड़ते हैं and then take one step at a time. और एक कदम एक बार लेते हैं, One step. और एक एक कदम ऊपर चढ़ते When हैं। I was a small boy, I had this experience. और जब मैं छोटा लड़का था तो मुझे ये अनुभव When था। you are climbing up, जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, especially when you are climbing high roof, खास तौर से जब आप ऊंचे छत पे चढ़ रहे our हैं। house was a very huge house, very big ladder. With that ladder, we climbed to the rooftop. हमारा घर बड़ा बड़ा था और बड़े ऊंची सीढ़ी से हमें ऊपर जाना होता था। It will be leaning on the other side. It will be leaning. The ladder और will be वो leaning. जो सीढ़ी होती थी घर के ऊपर टिकी होती थी, We take one step at a time and climb. और हाँ सीढ़ी पर एक कदम आगे बढ़ते When चले you जाते turn थे। back and look at behind, down below, जब पीछे मुड़ के नीचे की तरफ देखते थे, your heart will beat faster. आपका Fear. दिल तेजी Again, से fear. धड़केगा, डरोगे आप। So when you are climbing the ladder, never look behind. तो जब आप सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं तो कभी पीछे मत देखें, One step at a time and don't look behind at all. और एक समय पे एक कदम बढ़ें और पीछे मत देखें। This is what the Lord is reminding you. प्रभु यही बात आपको याद दिला रहा है। One step at a time. एक समय पर एक कदम लें Don't look behind. और पीछे मत देखें, Don't look at the past, whatever has happened. Leave that behind. और पीछे जो कुछ हो गया उसको ना देखें, उसको पीछे छोड़ दें। Looking forward by faith. विश्वास से आगे की तरफ देखें। We walk by faith and not by sight. हम विश्वास से चलते हैं, ना कि देखकर। Faith steps one step at a time. विश्वास कहता है एक बार में एक कदम बढ़ा, Looking to God. परमेश्वर की तरफ देखते हुए Going higher and higher in your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन में ऊंचाई पर और ऊंचाई पर बढ़ता चल। So this is what you need to do today. तो आज आपको यही करना है, Don't try to jump from here to there. और यहाँ से वहां तक कूदने की कोशिश ना करें। The Lord will lead you, guide you. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। He will give you the precious promises which are required for this spiritual journey. वो आपको इस आत्मिक यात्रा के लिए जो प्रतिज्ञाएं हैं वो आपको देगा। But you have to keep going forward लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा and keep looking upward और ऊपर की तरफ देखना होगा and going ahead in your spiritual life. और अपने आत्मिक जीवन में आगे की ओर बढ़ना होगा। And in this journey, और इस यात्रा में you are not alone. आप अकेले नहीं हैं। And you can see God at the end. आप दूसरे छोर पर परमेश्वर को देख This सकते हैं। ladder is leaning on that where God is standing there. ये सीढ़ी वहां पर टिकी हुई है जहां पे परमेश्वर खड़ा है। God is your trust.
परमेश्वर आपका भरोसा है, He is everything unto you. वो आपके लिए सब कुछ है, He will perform all things for वो you. आपके लिए सब कुछ करेगा, And He will perform that which concerneth you. Psalm 138 and verse 8. और वो आपके लिए वो सब करेगा जो आप जिसकी आपको जरूरत है। भजन 138:8। Psalm 56 and verse 9 says, भजन 56 उसकी 9वीं आयत कहती है। Psalm 56, भजन 56 verse 9. उसकी 9वीं आयत, God is for me. परमेश्वर मेरे लिए है। Do you know that? क्या आप जानते हैं? Do you know this? क्या आप इस बात को जानते God is हैं? reminding you. परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, You should know this. आप इस बात को जाने। What is that you should know? आप क्या बात जाने? God is for me. परमेश्वर मेरी ओर है, He's there for me. वो वहां पर मेरे लिए है, He's working on my behalf. वो मेरे लिए वहां पे काम कर रहा He है। will perfect that which concerneth me. He will perfect that which concerneth वो me. जो मेरे लिए जो जरूरी है वो पूरा करेगा। His way is perfect. उसके मार्ग सिद्ध हैं, Sometimes it is past finding out. और कई बार मुश्किल होता है And ढूंढना। Psalm 57 and verse 2, भजन 57 उसकी दूसरी I आयत, will cry unto God most high, unto God that performs all things for me. मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। This is the confidence you should have. ये हियाब आपके पास हो, God who is there for you. वो परमेश्वर जो वहां है वो आपके लिए है। Have this confidence in your life. ये विश्वास आपके जीवन में बना रहे, Put your trust in Him. वो अपना भरोसा उसमें रखें। Whatever problems you have, जो कोई भी समस्या आपकी do है, not worry about anything. किसी बात की चिंता ना But करें, tell Him everything. और उसको हर एक बात बता दें। Philippians chapter 4. फिलिपियों चौथा अध्याय, Philippians chapter 4, फिलिपियों चौथा अध्याय verse 6. उसकी छठी आयत, Be careful for nothing. किसी भी बात की चिंता मत Don't करो। worry about anything. It is an instruction from God. किसी भी बात की चिंता मत करे, ये परमेश्वर की ओर से निर्देश है। But in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। Give thanks for everything whatever has happened in your life. आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए धन्यवाद दें। Not only praying but giving thanks unto God. न केवल प्रार्थना करें बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद भी दें। Thanksgiving shows that you have faith in God. धन्यवाद दिखाता है कि आप परमेश्वर, आपका भरोसा परमेश्वर पर है। Thanksgiving shows that you accept God's dealings with you. और धन्यवाद दिखाता है कि परमेश्वर जो आपके जीवन में कर रहा है आप उसको स्वीकार कर रहे And हैं। verse 7 says, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. और 7वीं आयत बताती है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित You will have रखेगी। a heavenly peace. आपके पास स्वर्गीय शांति You होगी। will have the peace of God which passeth all human understanding. आपके पास परमेश्वर की वो शांति होगी जो मनुष्य की समझ से बाहर है। Today, how is your mind? आज आपका मन कैसा It is है? wandering here and there. वो इधर उधर भटक रहा है। All that happened in your life. वो सब जो आपके जीवन में हुआ, Many questions, why? आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा क्यों हुआ? But if your mind is stayed on the Lord, लेकिन यदि आपका मन परमेश्वर के ऊपर टिका हुआ है who is your trust, और आपका भरोसा then परमेश्वर पर है, you will be kept in perfect peace. आप बड़ी शांति में कायम रहोगे। Isaiah chapter 26 and verse 3. ये शायद 26 उसकी तीसरी आयत, Thou will keep him in perfect peace. A person who trusts in God and whose mind is stayed on Him. वो जिसका मन परमेश्वर पे बना रहता है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है, परमेश्वर उसको सिद्ध शांति में बना के रखता है। God is there ahead. वो आपके आगे परमेश्वर है, He is close to you. He is with you. वो आपके करीब है, वो आपके लिए है। He looks at what all He has happened in your life. He knows everything. और आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो जानता है। And this ladder will reach up to God. और ये सीढ़ी परमेश्वर तक जाएगी। You will have a new experience of God. आपके पास परमेश्वर के साथ एक नया अनुभव And होगा। angels are descending up and down. और स्वर्गदूत ऊपर और नीचे चल रहे हैं। What does it mean? इसका मतलब क्या You है? will have that heavenly help also. आपके पास स्वर्गीय सहायता भी है। Heavenly help is there for you. स्वर्गीय सहायता है आपके लिए। God is there for you. परमेश्वर आपके He लिए will do है everything for you. और वो आपके लिए सब So कुछ this is the करेगा। dream he had. तो ये सपना याकूब ने देखा। Then what happened? फिर क्या हुआ? Suddenly he awoke. एकदम से वो जग गया। We'll turn to Genesis chapter 28. उत्पत्ति 28 अध्याय। Genesis chapter 28. उत्पत्ति 28 अध्याय। He awoke in his sleep. वो अपनी नींद में जाग गया। In verse 16, 16वीं आयत, Jacob awaked out of his sleep and he said, surely
the Lord is in this place. I knew it not. तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। Even the place of difficult situation, और मुश्किल जगहों में भी, even in all the difficult situations, सारी मुश्किल हालातों में भी surely God is there. निश्चित रूप से परमेश्वर वहाँ है। You don't know. आपको नहीं मालूम, Many times we don't know. कई बार हमें मालूम ही नहीं होता, That is why you are worried. इसलिए आप चिंता करते That is हैं, why you are in fear. इसलिए आप डरे हुए होते And हैं। when he was afraid, he said वो कहता है in verse 17, 17वीं आयत में, how dreadful is this place? और कितना भयानक ये स्थान है। This is none other but the house of God. यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं, This is the house of God. ये परमेश्वर का घर है। That is the place where you should be. और ये वो जगह है जहाँ आपको होना You है। should be connected to the house of God. आप परमेश्वर के घर से जुड़े हुए हों। Many times, कई बार in difficult situations, we मुश्क- don't go to the house of God. मुश्किल समयों में हम परमेश्वर के घर में नहीं जाते। Are you keeping away from the house of God? क्या परमेश्वर के घर से दूर हो रहे हैं? Are you having fellowship in the house of God? क्या परमेश्वर के घर में संगति करते Are हैं? you dwelling in the house of God? क्या परमेश्वर के घर में वास किया हुआ है आपने? Attached to the house of God? क्या परमेश्वर के घर से जुड़े हुए हैं? To be taught in the house of God? कि परमेश्वर के घर में आप सीख रहे हैं, To worship the Lord in the house of आप God? परमेश्वर के घर में आराधना कर रहे हैं, And also to pray in the house of God? और परमेश्वर के घर में प्रार्थना कर रहे हैं, Enjoy the fellowship of the family of God in the house of God. परमेश्वर के घर में संतों की संगति का आनंद ले रहे हैं। The house of God. परमेश्वर का घर। And what is that place? और ये कौन सी जगह है? He says, this is the gate to heaven. और वो कहता है ये तो स्वर्ग के लिए रास्ता है, द्वार है। What a wonderful explanation about the house of God. और ये परमेश्वर के घर का कैसा बड़ा दर्शन है। That is the way you have to go to heaven. और ये वो द्वार है जो स्वर्ग की ओर जाता है। House of God is the gate to heaven. और ये It is the gate of heaven. ये परमेश्वर का घर स्वर्ग के लिए फाटक है। Wonderful. बड़ा अद्भुत। Then what did he do after that? फिर उसने क्या किया? He took the stone which he has put as for his pillow और फिर उसने वो पत्थर लिया जिसे उसने अपना तकिया बनाया and था, set it for a pillar और उसको खंबा बना के खड़ा and कर poured दिया, oil on that और उसके ऊपर तेल उंडेला, and called the name of that place Bethel. और उस जगह का नाम बेतेल रखा। God is there. परमेश्वर It यहाँ is the है, house of God. ये परमेश्वर का घर है। Remember, याद रखिए, many bitter experiences in your life. आपके जीवन में बहुत बहुत कड़वे अनुभव होंगे, Hard experiences in your life. आपके जीवन में बड़े कठोर अनुभव होंगे। It becomes a testimony for the Lord. ये प्रभु के लिए गवाही बन जाती है। The hard stone became a testimony. ये कठोर पत्थर परमेश्वर की गवाही देता है। God may take you through many difficult situations. परमेश्वर आपको बड़े मुश्किल हालातों में से होके लेकर जाएगा। God has a purpose. परमेश्वर की एक योजना है In future, भविष्य में। that will become a testimony in your life. भविष्य में ये कठोर पत्थर गवाही बन जाएगा आपके That लिए, will bring blessing in the lives of many. और ये बहुतों के जीवन में आशीष लेकर आएगा। I have wondered many times in my life, मैं कई बार अपने जीवन में ताज्जुब करता हूँ, why all these things are happening in my life. मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। Many disappointments, बहुत सारी निराशाएं, many thoughts I had, बहुत सारे विचार हैं, many dreams I had as a young man. जब मैं जवान था बहुत सपने देखे, But all that was gone. लेकिन वो सब बीत गया। I used to ask God, why? मैं परमेश्वर से पूछता था, प्रभु ऐसा Why in क्यों? this young age, all these difficulties? प्रभु इस जवानी के समय में ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं? Others are okay. Everything is all right in their life. बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उनके But in जीवन my में, life, why this is happening? लेकिन मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? But all those difficult, bitter experiences, I was able to taste the Lord's goodness. लेकिन उन सारे कड़वे मुश्किल अनुभवों में मैं परमेश्वर की भलाई को चख सका। Psalm 34 and verse 8. भजन 34 उसकी 8वीं आयत, Taste and see that the Lord is good. चख और देख और जान कि यहोवा कैसा It is भला not है। when everything happens good, everything happens in the way we want, then we taste the goodness of God. और ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा हो तब हम परमेश्वर की भलाई को चखते हैं। Even in the bitter situations, you should be able to taste the goodness of God. और बड़ी मुश्किल हालातों में भी आप परमेश्वर की भलाई को चख सको। Many believers have COVID. बहुत सारे विश्वासियों को कोविड हुआ, You know one sign of COVID? No taste.
और कोविड का एक चिन्ह था कि उसमें स्वाद चला जाता We है। are COVID believers. We don't taste the goodness of God, no? हम कोविड के विश्वासी हैं, हम परमेश्वर की भलाई को चख नहीं पाते। God is good. परमेश्वर He भला है doeth good. He doeth good. He और does good. और वो भला करता है All things work together for good. और सब बातें भलाई उत्पन्न करती He है। cannot do anything bad. वो कुछ बुरा कर ही नहीं Psalm सकता। 72 and verse 1. भजन 72:1 Surely God is good. Sure. निश्चित रूप से परमेश्वर भला है, He continues to be good. वो निरंतर भला बना रहता You है। think sometimes He's bad to you. आप सोचते हैं कि कभी कभी वो आपके लिए बुरा बन जाता He है, can't be bad to you. वो आपके लिए बुरा बन ही नहीं सकता। During the COVID time, कोविड के समय में every day at 9 o'clock, we used to pray as a family. और हर रोज 9 बजे हम परिवार के साथ बतौर परिवार प्रार्थना करते थे। Claiming Psalm 91. हम भजन 51 मांगते थे प्रभु से, COVID should not come to us. कोविड हमारे घर में ना आए, It should not come to us. वो हमारे घर में ना आए। We very sincerely prayed every day. बड़ी गंभीरता से हर रोज प्रार्थना करते थे। One day I got fever. एक दिन मुझे बुखार हुआ Every day somebody is coming and checking, do you have fever? We cannot tell lies also, no? और हर दिन कोई ना कोई आ रहा है और चेक कर रहे हैं कि सरकारी आदमी आ रहा है क्योंकि तो बुखार तो नहीं है। I had fever. और हम झूठ तो बोल नहीं सकते, मुझे बुखार था। I gave the sample. मैंने सैंपल दे दिया, But I had faith. लेकिन मुझे विश्वास था। What is the faith? क्या विश्वास था? I am praying. मैं प्रार्थना कर रहा I will हूँ not get COVID. मुझे कोविड नहीं होगा, The result came. और परिणाम आया। I still remember. मुझे अभी भी याद Came है, in the cell phone. और सेल फोन पर COVID positive. कोविड पॉजिटिव। What do you say for that? आप क्या कहोगे? Immediately I knelt down. एकदम से मैं घुटनों पर आ गया, All of us knelt down. हम सब घुटनों पर आ गए Thank the Lord. और परमेश्वर का You know what I धन्यवाद said? किया। I said, Lord, you are good. मैंने प्रभु को बोला, प्रभु तू भला है। And I said, Lord, I love you. और मैंने बोला, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ। Then what happened? फिर क्या हुआ? All others are tested now. और सबकी परीक्षा सबकी टेस्ट हुए, Still our prayer is they should not have COVID. और फिर भी हमारी प्रार्थना थी कि औरों को कोविड ना हो। I am separately in a room. मैं अब कमरे में अलग हो गया। Test result came. हाँ। Test result came. टेस्ट का रिजल्ट आया। How was the result? रिजल्ट All कैसा? are positive. और सबको कोविड हो रखा Now है। no problem at all. अब कोई समस्या All नहीं, can meet each other. No अब problem. सब मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ। All of us got COVID. हम सबको कोविड हो गया। I was wondering. मैं ताज्जुब कर रहा था। I used to go out and come and all. मैं बाहर जाता था और वापस आता था, My wife and family, they blamed me. और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझ पर दोष लगाया। You only brought COVID to our house. तू ही हमारे घर में कोविड लेकर आया। I told every month I work, I bring salary. अब मैंने बोला That हर time महीने you मैं never said सैलरी anything, लेकर but आता now हूँ, you're saying I brought COVID. और तुम कह रहे हो कि मैं कोविड लेके आया। Then I was wondering, फिर मैं ताज्जुब कर रहा था। my driver, मेरा ड्राइवर, he's an idol worshipper. वो तो मूर्ति पूजक है, He never prayed to Jesus. उसने कभी यीशु से प्रार्थना ही नहीं He करी, did not get COVID. उसको कोविड हुआ ही नहीं, I got. और मुझे हो गया। Why God allowed that? परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने He दिया? allowed that. उसने बस होने दिया। But we tasted the goodness of the Lord. लेकिन The Lord हम is good. लेकिन हमने परमेश्वर की भलाई को चखा। परमेश्वर भला है। Even in your bitter situation, अपने बुरे हालातों में भी experience the goodness of the Lord. आप परमेश्वर की भलाई को चखें, Goodness of the Lord. परमेश्वर की भलाई को। Third wave also I got COVID. और तीसरी जो लहर आई कोविड की, उसमें भी मुझे कोविड हो गया। The Lord has been gracious. प्रभु अब बड़ा अनुग्रहकारी था, Truly gracious. और सच में अनुग्रहकारी था। Many bitter experiences. बहुत कड़वे अनुभव रहे, It becomes a testimony. और ये गवाही बन गई अब, It encourages others. और ये इससे दूसरों को हिम्मत मिलती है। Many young people, बहुत सारे जवान लोग, they don't get jobs. उनको Campus नौ- selection, they don't get. उनको नौकरी नहीं मिलती, कैंपस सिलेक्शन नहीं They होता। are very worried. चिंता मत करो, I used to tell them. मैं उनको बताता था। I waited for 2 years, no job. मैंने 2 साल तक इंतजार किया, कोई नौकरी नहीं They मिली, are encouraged. और वो उन्हें That हिम्मत bitter मिलती है। situation has become a testimony. ये बुरे हालात उनके लिए गवाही बन गए। Some will tell, I failed. और कोई कहेगा मैं फेल हो गया, I used to tell, मैं उनको बताता था I also failed. मैं भी फेल हो गया था। Chemistry practical I failed. केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में Oh, मैं फेल हो uncle गया। also failed. जी, Uncle also failed. अंकल भी फेल हो गए So थे, they are encouraged also. और उनकी हिम्मत बढ़ All जाती थी। these difficulties which I faced in my young life, it has become a testimony. और जो कुछ भी मुश्किल हालात मैंने जवानी में देखे, वो अब गवाही बन गई। Hard stones,
कठोर पत्थर It has become a testimony. अब ये गवाही बन गई। It is not the foam which gives a testimony, but और bitter ये experiences. गद्दा नहीं है, फोम नहीं है जो गवाही बन जाती है। Today, young people, they want everything to happen the way they want. और आज जवान लोग वो चाहते हैं कि जैसा वो चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो, Everything should be comfortable. और सब कुछ बड़े आराम से हो। You know what the word of God says? परमेश्वर का वचन क्या कहता Lamentation chapter 3. है? विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय, Lamentation chapter 3, विलाप गीत उसका तीसरा verse अध्याय 27. और उसका 37वां आयत। It is good for a man that he should bear the yoke in his youth. और ये भला है कि कोई मनुष्य अपनी जवानी में परमेश्वर का जुआ उठाए। 3:27. विलाप गीत 23:27. 3:27। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। Yet youth, आप जवान हो, it is good to bear the burden. ये आपके लिए भला है कि आप जवानी में बोझ उठाएं। Sometimes the travel will be painful. कई बार यात्रा मुश्किल बड़ी दर्दनाक होती है। It is good. अच्छा है, It is good. ये अच्छा है। You are thinking it is bad. आप सोचते हैं बुरा है, It is good. ये अच्छा है। It will become a testimony for the future. ये भविष्य के लिए, भविष्य में गवाही बन जाएगी। God is preparing you for the future परमेश्वर आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा to be है, a blessing. एक आशीष बनने के लिए। God prepared Jacob. परमेश्वर ने याकूब को He तैयार has किया, to be blessed and be a blessing. He has to go through these experiences. और दूसरों के खुद आशीष बनने के लिए और दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए वो इन अनुभवों में से होके गया। So Jacob experienced heaven. तो याकूब ने स्वर्ग का अनुभव किया। It is a gate of heaven. ये स्वर्ग का फाटक था, It is the gateway of heaven. ये स्वर्ग का फाटक था। God revealed himself परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया and Jacob saw. और याकूब ने देखा, He named that place as Bethel, और उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा, house of God. परमेश्वर का घर। This is the first time in the Bible the word house of God is mentioned. परमेश्वर के वचन में पहली बार परमेश्वर के घर का जिक्र है। Bethel is mentioned first time. बेतेल का जिक्र है पहली बार। Then what happened later on in his life? और फिर बाद में उसके जीवन में क्या हुआ? We read in chapter 35. हम 35वें अध्याय में पढ़ते हैं, God said unto Jacob again, परमेश्वर ने याकूब को दोबारा बोला, Arise, go up to Bethel, उठ और बेतेल को जा dwell there, और वहां रहे, and there make an altar unto God और वहां पर परमेश्वर के लिए that एक वेदी appeared बना unto you. जो तुझ पर प्रकट हुआ था। Then what did Jacob do? फिर याकूब ने क्या किया? In verse 2 it says, और याकूब तीसरी आयत बताती Jacob है, said unto his household तब याकूब ने अपने घराने से कहा and to all that there with him, और उन सब से जो उसके संग थे, put away the strange gods that are among you. तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें Be निकाल clean and फेंको, change your garments. अपने आप को शुद्ध करो Let us arise and go up to Bethlehem. और Bethel. अपने वस्त्र बदलो और आओ हम यहाँ से निकल कर I बेतेल को will जाएं, make there an altar unto God. वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। Today the Lord is reminding you. आज परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, The Lord needs you and your family परमेश्वर को आपकी और आपके परिवार की जरूरत है to be in Bethel, कि आप वो बेतेल में हो, to be in the house of God, to कि आप- dwell in the house of God. कि आप बेतेल में हो, परमेश्वर के घर में हो। But before you built an altar there, लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर के घर में आप एक वेदी बनाएं, altar connects with God. वेदी के द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ते हैं। What should you do? आप क्या करें? Your household has to be cleaned. आपके घराने को शुद्ध होना है Put away all the strange gods. और सारे पराये देवताओं को दूर कर दो, Clean your garment, change your garments. अपने वस्त्रों को बदल डालो। Tonight that should happen in your family. और आपके परिवारों में आज रात ही होना चाहिए। Strange gods have occupied you and your house. पराये देवताओं ने तुम्हें और तुम्हारे घराने को कैप्चर कर लिया है। The place you are supposed to give for God is robbed by something else. जो जगह परमेश्वर को की होनी चाहिए थी उसको किसी ने चुरा लिया है। We read in John's Gospel chapter 10 and verse 10. हम यूहन्ना 10:10 में पढ़ते हैं, The thief comes to steal and to destroy. चोर चुराने और नाश करने के लिए आता है। He has stolen your time और- which you are supposed to give to God. उसने आपका वो समय चुरा लिया जो समय आपको परमेश्वर को देना था। Many things you have been destroyed. और The devil has destroyed you. और बहुत सारी चीजें शत्रु ने नाश कर दी, शत्रु ने आपको नाश कर दिया। Today you are not having abundant life.
आज आप बहुतायत का जीवन नहीं जी रहे हैं। It is time to put away all those things. अब ये समय है, ये सारी चीजों को बाहर निकाल के फेंक दो। Come back to God. आप वापस परमेश्वर के पास आ जाएं। God should be first in your life. आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान God हो। should be honored in your home. परमेश्वर को आपके घर में Not आदर one मिले। person. Not one person. केवल एक व्यक्ति नहीं, The entire household. पूरे घराने में। Jacob told याकूब ने बोला, the household and all that were with him, और- put away the strange gods. Put और away. वो जो सब उसके साथ थे उनको बोला, अपने घर अपने यहाँ से सारे पराये देवताओं को Clean निकाल दो, yourself. अपने आप को शुद्ध कर दो, Change all your dirty garments. अपने सारे गंदे वस्त्रों को बदल डालो, Come back to Bethel, वापस बेतेल में आ जाओ। house of God of Jacob. याकूब के परमेश्वर का घर। The Lord wants you and your family. परमेश्वर को आप और आपका परिवार चाहिए। Whatever is displeasing to God today. आज जो कुछ भी ऐसी बात है जो परमेश्वर को नहीं भाती है, You don't say, I don't know that. आप ये ना कहें मुझे नहीं मालूम ये सब You are बातें। aware of that. आपको मालूम है, You know that. आप जानते हैं उन्हें। Right now, it is in your mind. अभी अभी आपके दिमाग में सारी बातें हैं, All the things which are not pleasing to God. वो सारी बातें जो परमेश्वर को नहीं भाती, All the things which has taken the place of God in your home. वो सारी बातें जिन्होंने परमेश्वर का स्थान आपके घर में ले लिया The है, things which have taken you away from God. वो बातें जिन्होंने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया है, It is time to put away. और ये समय है कि उन सब चीजों को बाहर फेंक दो। Now is the time. अब वो समय है, You may not get another opportunity. आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। Decide today. आज फैसला कर लें, Come back to Bethel. वापस बेतेल में आ जाएं, Build an altar. वेदी बनाएं, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा, And you will be a blessing to many. और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष May the दे। Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। Our loving Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय प्रेमी प्रभु our gracious and wonder working God, हमारे अनुग्रहकारी और अद्भुत काम करने वाले we परमेश्वर, thank Thee for the wonderful time that was given unto us since morning. और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमें दिया, Thank Thee for all the word released these 2 days, Friday and Saturday. और इन 2 दिनों के लिए शुक्रवार और शनिवार के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। We are grateful to Thee for Thou art the true and the living God. That is why You are speaking unto us. और प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने बड़े अद्भुत रीति से बड़ी सामर्थ्य के साथ हमारे सामने प्रचार किया, Even tomorrow's ministry also we commit it into Thy loving hand. और कल को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। Even tomorrow Thy word may be released from Thy heavenly throne. और प्रभु कल भी आपका वचन आपके स्वर्गीय सिंहासन से हमारे पास आए, Enable us to worship Thee in spirit and in truth. और हमारी सहायता करें कि हम आत्मा सच्चाई में आपकी आराधना कर Enable us सकें, to take part in Thy table worthily. और हमारी सहायता करें कि हम आपकी मेज में योग्य रीति से हिस्सा ले And सकें, also prepare our hearts to listen to Thy word and abide Thy word. और प्रभु हमारे हृदय को भी तैयार करें कि हम आपके वचन को सुन सकें और आपके वचन में बने रहें। Thank Thee for all those who could come for today's meetings. Those who could not come, give them their portion of blessing also. धन्यवाद देते हैं जो आज आए और जो नहीं आए उन पर भी आशीष दें, O Lord, continue to speak to us. और प्रभु हमसे निरंतर बात करते रहे, And thus prepare us for the coming of the Lord Jesus Christ. और हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. यीशु के बेशकीमती नाम में ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते हैं, Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.